जयलक्ष्मी को कि वे हमें कोविड वैक्सीन के बारे में संपूर्ण जानकारी दें। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना मोबाइल म्यूट मोड में रखें, वीडियो ऑफ रखें और आपके मन में जो भी प्रश्न है आप उन्हें चैट बॉक्स पे पोस्ट करें। ओवर टू यू डॉक्टर जयलक्ष्मी। डॉक्टर जयलक्ष्मी। Yeah, hello. Yes. Yeah, thank you very much, Dr. Sangeeta, for a very kind words of introduction. And thank you so much to Dr. Kure for having arranged and invited me as speaker for this program. So today we will talk, I will first share a few slides which I have prepared on the COVID vaccination. It may actually clear many of your questions. After that, whatever questions or queries are there, we will take in the end. So I will start with a very short presentation. So we will have a short update on COVID vaccine. So as we know, the pandemic has caused a lot of morbidity, mortality throughout the world. And today itself, there were about 8,000 new cases. And the cases numbers is rising up very drastically. And so is the number of deaths, around 520 deaths in India over 24 hours, which is more than even USA. I think it is the highest in the world now, even ahead of Brazil. So this is a great matter of concern. So what tools do we have? Of course, we have social distancing. We have measures of mask. In addition, we now have a vaccine. And now it's like sort of a race between the vaccine and the virus. So although the vaccinations are going on, the rate of the vaccination is not so much, and at the same time the virus is mutated. It is at every step proving to be one step ahead of us, and it keeps on mutating. So we will talk a bit about the vaccines and the mutations currently there today. So these are all the vaccines which are there: Zydus, Covidus, Vaccine E, Covaxin, Sputnik, Covishield. So many names we hear. So the relevant vaccines for us is two, that is the Covishield and the Covaxin, which is currently being administered in India. No other vaccines are being administered in India except under a trial setting. So from 16 January, we started getting the vaccinations. Most of the healthcare workers have already received their 2 doses of the vaccine. Initially, the Covishield vaccine was started, and then the Covaxin also has been rolled out. So what is Covishield? What is Covaxin? So Covishield is a viral vector vaccine, means there is a chimpanzee cold virus, that is adenovirus, which normally can cause a cold in chimpanzee. So it's like a normal adenovirus vaccine, or a virus which causes a common cold. So in this, a weakened strain is made. In that weakened strain, there is a DNA which is incorporated. डॉक्टर जया, आप थोड़ा हिंदी में बताएंगी, हमारी पब्लिक बहुत सारे लोग डॉक्टर्स नहीं हैं। ओके, तो आप थोड़ा प्लीज हिंदी में बताइए। ठीक है। तो ये जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है, इसका एक नॉर्मल सर्दी का जो वायरस है, उसमें जो कोविड के डीएनए है उसको डाला हुआ है। तो जब भी वो इंजेक्ट होता है हमारे बॉडी में, तो ये जो वायरस है वो अंदर जाती है। ये जो नॉर्मल सर्दी का वायरस है, इसकी वजह से नॉर्मली लोगों को जल्दी से फीवर आता है, सर्दी आता है। कुछ लोगों को कुछ नहीं होता है, उनको ऑलरेडी वो सर्दी का इम्यूनिटी रहता है। तो ये जो डीएनए अंदर जाती है, वो स्पाइक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जो वायरस का स्पाइक प्रोटीन है, कोविड वायरस का। वो स्पाइक प्रोटीन हमारे बॉडी में जैसे प्रोड्यूस होते हैं, वैसे इम्यूनिटी हमारा इम्यून सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और इम्यूनिटी तैयार होती रहती है। तो इम्यूनिटी तैयार होने को टाइम लगता है, 2 हफ्ते के बाद ही वो इम्यूनिटी आने लगता है, क्योंकि बॉडी में वो प्रोटीन जाना है, उसके बाद वो वायरस प्रोड्यूस होना है, उसके बाद वो जाके इम्यूनिटी सेल्स आते हैं। एंड फर्स्ट डोज के बाद उतना इम्यूनिटी नहीं आता है, लेकिन सेकेंड डोज जब भी जाता है तो और भी वो जो इम्यून सेल ऑलरेडी प्राइम हो गए हैं, जो तैयार हो गए हैं, उनको और भी स्टिमुलेट करता है, तभी अच्छा खासा इम्यूनिटी प्रोड्यूस होता है, जो ऑलमोस्ट 80%, 70 to 60 to 90% का रेंज है उसमें। उतना हमको प्रोटेक्शन देता है। तो सेकेंड डोज के 3 वीक्स के बाद ही एक्चुअली प्रोटेक्शन चालू हो जाती है। मेन चीज इसमें रिमेम्बर करने की ये है कि जब भी इंजेक्शन मिलता है, पूरा कोविड वायरस इंजेक्ट नहीं होता है। इसके लिए इंजेक्शन से कोविड नहीं आ सकता है।
मतलब कोविड की बीमारी इंजेक्शन लेने से नहीं आ सकती है। लेकिन हमने सुना है कि बहुत सारे लोगों को कोविड वैक्सीन लिया और 1 हफ्ते के बाद कोविड हुआ, 2 हफ्ते के बाद कोविड हुआ, तो ऐसे क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है कि जो कोविड का है उसका ये रहता है लेटेंट पीरियड, मतलब कोविड हमको इफेक्ट होने के बाद हमको बीमारी आने को 1, 2, कभी-कभी 3 अप टू 20 डेज भी लग सकते हैं। नॉर्मली 14 डेज के अंदर बीमारी आती है। तो अगर ये विंडो पीरियड में हमने वैक्सीन ले लिया है या इवन वैक्सीन लेने की जगह में हम एक्सपोज हो गए हैं या फिर वैक्सीन लेने के बाद हमने एक्सपोज किया है कि हमने वैक्सीन लिया, अभी हमको इम्यूनिटी है, अभी हमको मास्क की जरूरत नहीं, या थोड़ा सा केयरलेस हुआ है, जो कि नॉर्मली लोग होते हैं, मतलब वैक्सीनेशन लेने के बाद अक्सर देखा गया है कि लोग थोड़ा सा केयरलेस होते हैं, उनको लगता है कि अभी हमको इम्यूनिटी आ गया है, अभी हमको सावधान रहने की जरूरत नहीं है, तो इसकी वजह से वो जो है वो बीमारी आती है। लेकिन नोट करने की बात ये है कि कोविड वैक्सीनेशन से बीमारी कभी नहीं आ सकती, क्योंकि हमने वो वायरस इंजेक्ट ही नहीं किया है, सिर्फ उसका एक डीएनए इंजेक्ट किया है, जो सिर्फ प्रोटीन उसका एक तैयार करता है, उसका जो पूरा वायरस का एक छोटा सा प्रोटीन जो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता है और बीमारी नहीं बना सकती है। दैट सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर इवन कोवैक्सीन। कोवैक्सीन में क्या डिफरेंस है ओवर कोविशील्ड? उसमें वो जो कोविड वायरस है वही हम उसको किल करते हैं बाय पुटिंग थ्रू वेरियस इनएक्टिवेटिंग एजेंट, और वो किल करने के बाद वो किल स्ट्रेन प्यूरिफाई करके वो इंजेक्ट किया जाता है। मतलब उसमें सिर्फ वो स्पाइक प्रोटीन का डीएनए नहीं है, उसमें जो एंटायर जो वायरस है उसका भाग है, उसको इंजेक्ट करते हैं, जैसे कि नॉर्मली बहुत सारे वैक्सीनेशन में होता है। और जो बॉडी है वो धीरे धीरे से उसका इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। उसमें भी 2 डोजेस है, एक डोज 4 हफ्ते के बाद दिया जाता है। ये दोनों भी वैक्सीन 2 से 8 डिग्री में हम प्रिजर्व कर सकते हैं और वो सेफ रहता है वो टाइम में। तो ये है कोविशील्ड, ये है कोवैक्सीन। तो ये उनकी टेक्निकल डिटेल्स है कि वो इंजेक्शन कैसे रहता है, सोडियम क्लोराइड उसको कैसे इनएक्टिवेट किया जाता है, तो क्या रहता है उसके अंदर, ये उसका टेक्निकल डिटेल्स है। तो ये है हमारा कोविशील्ड। तो बहुत सारे नाम है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। SII वैक्सीन भी बोलते हैं उसको, सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है इसके लिए। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन भी बोलते हैं क्योंकि ऑक्सफोर्ड में उसका पहले रिसर्च हुआ है और वो वहां से बनाया गया है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन भी बोलते हैं क्योंकि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका दोनों ने मिलकर इसको प्रोड्यूस किया था। तो ये है, तो इसमें ये हमारा वैक्सीन है, ये जो है उसके अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर वो डीएनए रहता है। तो ये सर्दी का वायरस है, जो चिम्प है, मंकीज में सर्दी होती है वो वायरस है। उसमें वो डीएनए ह्यूमन सेल में, मतलब इंजेक्शन होता है और वो ह्यूमन सेल के अंदर चला जाता है। और ये जो डीएनए है ये स्टिमुलेट करता है प्रोटीन प्रोडक्शन। हमेशा डीएनए जो है प्रोटीन प्रोडक्शन स्टिमुलेट करता है, तो ये स्पाइक प्रोटीन जनरेट करता है। ये स्पाइक प्रोटीन कोई भी नॉर्मल स्पाइक प्रोटीन नहीं है, ये कोरोना वायरस के ही स्पाइक प्रोटीन है। तो ये जाके हमारी बॉडी में इम्यूनिटी रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। तो वायरल वेक्टर वैक्सीन जो है वो डीएसडीएनए, तो इसको बोलते हैं वायरल वेक्टर वैक्सीन, और इसका अराउंड 82% ओरिजिनल स्ट्रेन पे एफिकेसी है। इसका सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, मतलब B1351, ये जो वेरिएंट है उसमें उनका एफिकेसी उतना अच्छा नहीं है। उसके भी स्टडीज हुए हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका में स्टडीज चालू थे जब ये नया वेरिएंट वहां पे आया, वैक्सीन ट्रायल्स वर गोइंग ऑन, दैट्स व्हाई वी हैड दिस डेटा कि अराउंड 10% ही उसका एफिकेसी है। डोजेस कैसा है, WHO ने 12 हफ्ते के बाद, मतलब 3 महीने के बाद लेने के लिए बोला है सेकेंड डोज। इंडिया में 6 वीक्स टू 8 वीक्स में सेकेंड डोज दिया जा रहा है। और ये है भारत बायोटेक का कोवैक्सीन, तो इसको कोवैक्सीन भी बोलते हैं, इसको भारत बायोटेक वैक्सीन भी बोलते हैं। तो ये भी हमारे इंडिया में प्रोड्यूस्ड है, इंडिया में ही वो उसका रिसर्च हुआ है, और पुणे में, सेम पुणे में ही इसका भी प्रोडक्शन और रिसर्च स्टार्ट हुआ था। तो ये जो वैक्सीन है ये इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस है, मीन्स कोरोना वायरस को किल किया गया है, और वो सेम जो कोरोना वायरस है उसको प्यूरिफाई करके हम इंजेक्ट करते हैं और बॉडी अपना इम्यूनिटी उसके लिए तैयार करती है। तो ये इनएक्टिवेटेड वायरस जो है वो रिप्लिकेट नहीं कर सकता, मतलब वो 1 से 2, 2 से 4 ऐसा नहीं बन सकता, लेकिन उसका प्रोटीन सब है, इसके लिए वो बॉडी में इम्यूनिटी क्रिएट करती है, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी हमको कोरोना इन्फेक्ट करे तो हमको बीमारी नहीं होगा या उतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो उसका भी एफिकेसी है 81%। तो ये एफिकेसी 81% का मतलब क्या है? मतलब वो 81% प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट गेटिंग सिवियर, अगेंस्ट गेटिंग द इलनेस, एंड ऑलमोस्ट 100% प्रोटेक्शन ये वैक्सीन देते हैं अगेंस्ट लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस
100% नहीं बोल सकते, अराउंड 95%. So there is still 5% chance that you can still get a serious illness even after taking the vaccine. एंड अगेन इनका जो B1351 जो वेरिएंट है, जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, उस पर स्टडीज हुए नहीं है, तो हमको मालूम नहीं है कि वो उन पे वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है. अगेन इसका डोसेस आर 28 डेज अपार्ट, इसका फिक्स्ड है तो वो 28 वीक्स अपार्ट ही है. तो इम्यूनाइजेशन मैकेनिज्म कैसा है, वी डोंट नो कि वो डीएनए अंदर जाके वो न्यूक्लियस के अंदर बैठ के वो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्रिएट करेगा क्या कोविशील्ड में, उसका जानकारी अभी नहीं है. तो क्योंकि डीएनए वायरस ये टेक्नोलॉजी जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी है. कोवैक्सीन का है ओल्ड टेक्नोलॉजी है हमारे पोलियो वायरस जैसे, और वो लेकिन उसमें एक एडजुवेंट चाहिए इम्यूनिटी के लिए. नॉर्मली एलएम यूज करते हैं जिसका इम्यूनिटी उतना अच्छा नहीं रहता. इसके लिए आजकल एलजेल आईएमडीजी ऐसा भारत बायोटेक ने बनाया है. सो दिस इज ऑल्सो अ गुड वैक्सीन. ये अच्छा टाइप का इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है. ये सेम इम्यूनिटी ही ये कोविशील्ड में भी प्रोड्यूस करता है. TH1 टाइप इम्यूनिटी बोलते हैं इसको. तो अगेन कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका ने बनाया है, जैसे बताया ऑक्सफोर्ड. इनके काफी स्टडीज हुए हैं, फेज 3 ट्रायल्स, मतलब जो लार्ज स्केल ट्रायल्स में होते हैं 12,000 to 15,000 लोगों में इसका स्टडी हुआ है. एंड प्रॉब्लम एक ही है कि ये 90% सब्जेक्ट जो है अंडर एज 55 थे इस स्टडी में. तो जो एल्डरली पॉपुलेशन है इसमें इसका एफिकेसी सब कुछ ऑलमोस्ट एक्स्ट्रापोलेटेड है, तो उनमें ज्यादा स्टडीज नहीं हुए हैं. इंडियन पॉपुलेशन में भी उसका ब्रिज स्टडी हुआ है, तो अप्रूवल उनका ग्रांट है. कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाया है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के साथ उसका रिसर्च हुआ था. ये भी पुणे में बनाया है नेशनल इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी के साथ. इनका भी फेज 1 एंड फेज 2 स्टडीज दोनों हुए हैं, और फेज 3 में 25,800 हुआ है और उसका रिजल्ट भी आया है. एंड इट इज अ वेरी लार्ज स्टडी. तो कोविशील्ड का 2 डोज है, 8 to 12 वीक्स WHO ने बोला है, 6 to 8 वीक्स अपना इंडियन MHOFW ने बोला है. कोवैक्सीन 2 डोजेस है, 4 वीक्स अपार्ट लेना है. कोविशील्ड का एफिकेसी है 70%, दोनों डोज 4 वीक्स में लेंगे तो. एंड ये मेटा एनालिसिस है 11,000 लोगों का, ये लैंडसेट में पब्लिश हुआ है, और एफिकेसी इंप्रूव होता है अगर ज्यादा गैप में लेंगे तो. और फेज 3 स्टडीज लेकिन 4 वीक इंटरवल में कंडक्ट किया गया है. तो इनका ये रिसर्च था बाद में कि 12 वीक्स के बाद लेंगे तो और जो 60 to 90% है उसका एफिकेसी और भी बढ़ता है अप टू 90%. जो कोवैक्सीन का है उसका भी एफिकेसी इज अबाउट 81%. 28,500 लोगों में इंडिया में स्टडी हुआ है, एक डबल ब्लाइंड स्टडी हुआ था. बहुत सारे पेशेंट, इवन हमारे बॉम्बे के बहुत सारे हॉस्पिटल में, साइन हॉस्पिटल वगैरह से यहाँ पे पेशेंट रिक्रूट हुए हैं. एंड तो उसका थोड़ा सा ज्यादा रिजल्ट है अपने इंडियन डेटा में. प्रोटेक्शन अगेंस्ट म्यूटेशन कितना है, इनिशियली जो यूके वेरिएंट है इसमें दोनों वैक्सीन इफेक्टिव है. जो कोवैक्सीन का एफिकेसी साउथ अफ्रीकन और ब्राजील का अभी तक स्टडी नहीं हुआ है, इसके लिए हम बोल नहीं सकते कि वो इफेक्टिव है या नहीं है. एंड कोविशील्ड का एफिकेसी नहीं दिख रहा है साउथ अफ्रीकन वेरिएंट में. ब्राजीलियन का एफिकेसी स्टडीज अभी चल रहे हैं, तो हमको मालूम नहीं कि वो ब्राजीलियन स्ट्रेन का वैक्सीनेशन कितना इफेक्टिव है, वो अभी तक पता नहीं है. कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या है, सो बेसिकली मोस्ट ड्रेडेड साइड इफेक्ट इज एनाफिलैक्सिस, मतलब सीवियर ड्रग रिएक्शन जो बोलते हैं जो वैक्सीन का, इज वेरी लेस, नॉट कॉमनली सीन. जो कॉमन सीन है वो पेन होता है, थोड़ा सा स्वेलिंग होता है, रेडनेस होता है, इचिंग होता है, कभी कभी वो पूरा आर्म में थोड़ा सा स्वेलिंग रहता है या रैश आ सकता है, आर्म स्टिफ होता है, फीवर हो सकता है, फीवर कॉमनली बताया लोग बोलते हैं. फटीग, मैलेज, वीकनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग, नोजिया भी हो सकता है, जॉइंट पेन्स, मसल पेन्स हो सकते हैं, बॉडी पेन्स हो सकते हैं, चक्कर आ सकता है, एपेटाइट कम हो सकता है, पेट में दर्द, लिम्फ नोड्स, कभी कभी वो एरिया के नेक के वगैरह लिम्फ नोड्स काफी बड़े हो जाते हैं, स्किन में इचिंग आती है, रैश आती है. कोविशील्ड में व्हाट शुड यू मेंशन टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो अभी आप जब भी जा रहे हैं वैक्सीन में क्या प्रिकॉशन लेना है आपको, किसको वैक्सीन नहीं मिलना है, उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे. तो क्या बोलना है जब भी हम जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए, तो एलर्जी हिस्ट्री है तो बताना है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन प्रीवियस डोज वैक्सीन लेके हुआ है तो बताना है, कोई भी इसका इंग्रेडिएंट का आपको ऑलरेडी पहले से एलर्जी है तो वो बताना है, फीवर अगर करेंटली है तो नहीं लेना है वैक्सीन, अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या ब्लड थिनर चालू है तो बताना है, इम्यून कॉम्प्रोमाइज है या मेडिसिन जो इम्यून सिस्टम जैसे कि स्टीरॉइड हो या आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो उसके लिए एजाथोप्रिन चालू है या मिथोट्रिक्सेट चालू है, या आप कैंसर के पेशेंट हो और आपको इम्यून सप्रेसेंट चालू है, तो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट को पूछ के ही वो वैक्सीनेशन लेना है. इट इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ऐसा नहीं कि नहीं लेना है, लेकिन
वो सावधानी से लेना है। और ऑलरेडी अगर आपने दूसरा वैक्सीन लिया है, अभी कोविशील्ड लिया है और बाद में कोवैक्सीन लेने को जा रहे हैं, वो सही नहीं है, वो एज ऑफ नाउ हम नहीं दे रहे हैं। उसके भी स्टडीज हो रहे हैं यूके में कि एक पहला डोज कोविशील्ड लिया और दूसरा कोवैक्सीन लिया तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। और पहला कोवैक्सीन, दूसरा उन्होंने आरएनए वैक्सीन के साथ उन्होंने ट्रायल किया है, क्योंकि फाइजर के वैक्सीन और कोविशील्ड दोनों यूके में अवेलेबल है। तो कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि हमने एक डोज ये लिया लेकिन हम नेक्स्ट डोज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए उनका स्टडीज चल रहे हैं। बाकी कोवैक्सीन के लिए सेम है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग में कोई भी वैक्सीन का ट्रायल हुआ नहीं है तो वो लेने के लिए रिकमेंडेड नहीं है, बच्चों में रिकमेंडेड नहीं है, 18 इयर्स के अंडर रिकमेंडेड नहीं है। एज ऑफ नाउ तो इंडिया में अबव 45 इयर्स ही चल रहे हैं। तो बेसिकली एलर्जी, फीवर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, दूसरा वैक्सीन मिला है तो, और या दूसरा कोई सीरियस हेल्थ इश्यू है तो, अंडर 18 है तो, इम्यून कॉम्प्रोमाइज है या इम्यूनिटी का मेडिसिन ले रहे हैं तो, कोवैक्सीन में उन्होंने ड्रग इंसर्ट में बोला है कि नहीं लेना है, लेकिन एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस ऑल दिस पीपल कैन टेक, बट प्रेग्नेंट ब्रेस्ट फीडिंग को नहीं दे रहे हैं, 18 इयर्स अंडर के नहीं दे रहे हैं। अगर इम्यूनिटी सप्रेसेंट मेडिसिन है तो भी ले सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर उन्हें क्लियर करना चाहिए, उनके ऑन्कोलॉजिस्ट हो या रूमेटोलॉजिस्ट हो या चेस्ट फिजिशियन हो, तो उन्होंने वो जो मेडिसिन दे रहे हैं उन्होंने क्लियर करना चाहिए कि ले सकते हैं। यूजुअली ऑन्कोलॉजी में ऐसा रहता है कि अगर उन्होंने वो इम्यून सप्रेसिव जो उनका डोज है वो लेने के अराउंड 3 to 4 वीक्स के बाद वो वैक्सीन ले सकते हैं, या बिफोर, जस्ट बिफोर द नेक्स्ट डोज, फ्यू डेज बिफोर द नेक्स्ट डोज, ताकि वो उनका इम्यूनिटी बहुत कम ना रहे वो टाइम में। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ तो ऑफकोर्स लेना नहीं है, एक्टिव फीवर है तो नहीं लेना है। एक बार कोविड हुआ तो 15 डेज आफ्टर कंप्लीट सिम्टम सबसेट, हम लोग सेफ्टी के लिए बोलते हैं कि 1 महीने के बाद ही नेक्स्ट डोज लेना है। और अगर कोई एक्यूट इलनेस के साथ हॉस्पिटल में एडमिट हुए, जैसे कि रीनल फेलियर हो, फीवर हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, तो 1 महीना रुकने के लिए एडवाइस करते हैं आफ्टर एनी हॉस्पिटलाइजेशन विद अ सीरियस इलनेस। फ्री है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में 250 रुपीज पर डोज में दिया जा रहा है। एंड करेंटली बहुत सारे पूछते हैं हम कोविशील्ड लेके कोवैक्सीन ले, तो नॉर्मली उसका चॉइस नहीं दिया जा रहा है, जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो सेंटर में वो लेते हैं। मोस्ट ऑफ द सेंटर्स एज ऑफ नाउ हैव कोविशील्ड एंड ओनली फ्यू सेंटर्स हैव द कोवैक्सीन। तो जस्ट एक लास्ट अबाउट द कौन सा वायरस स्ट्रेन है, तो एक B117 पे स्टडीज हुए हैं और दूसरे वेरिएंट्स पे स्टडीज। So this was about a study which was done with all these variants. तो B117 पे अच्छा खासा उसका इम्यूनिटी दिख रहा है, दूसरे वेरिएंट्स पे भी 81% है। इसमें जो है ये साउथ अफ्रीकन वेरिएंट का स्टडी नहीं है इसमें। ये जस्ट हमारा थियोरेटिकल नॉलेज के लिए mRNA वैक्सीन है, फाइजर मॉडर्ना दोनों सेम है। तो ये इसमें कैसा होता है, ये आरएनए, जैसे कि हमारे कोविशील्ड में डीएनए डालते हैं, इसमें जो आरएनए है उसको एक लिपिड नैनो पार्टिकल में डालते हैं और उसको इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, और फिर वो आरएनए फ्री हो जाती है सेल्स के अंदर, और वो आरएनए जाके स्पाइक प्रोटीन प्रोड्यूस करने को हमारे सेल्स को स्टिमुलेट करती है। तो हमारे जो नॉर्मल सेल्स है वो स्पाइक प्रोटीन तैयार करती है, और ये प्रोटीन जो है इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, तो हमारा बॉडी तैयार रहता है। इस प्रकार के स्पाइक प्रोटीन वाला जब भी कोविड वापस हमको अटैक करता है तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी आता है। इनका एफिकेसी बहुत अच्छा है, 94% है, एंड 28 डेज अपार्ट डोसेज है। जॉनसन एंड जॉनसन के बारे में बहुत चर्चा हो रही है आजकल, तो ये भी एक एडिनोवायरस वैक्सीन ही है, जैसे कि हमारा कोविशील्ड है, सिमिलर टेक्नोलॉजी है। तो अमेरिका में ये भी स्टार्ट हुआ है, इसमें डीएनए प्रोड्यूस होता है, स्पाइक रिलीज होता है, तो इट इज सिमिलर। 72% इसका एफिकेसी है, और इसका एक डिफरेंस है कि साउथ अफ्रीकन वेरिएंट में भी इसने 57% एफिकेसी दिखाया हुआ है। नोवोवैक्स इज ऑल्सो अनदर न्यू वन। इसमें कैसा है, वो सिर्फ नैनो पार्टिकल्स है जो सिंथेटिक स्पाइक प्रोटीन जनरेट करके उसको लोड करके वो इंजेक्ट करते हैं। तो मतलब डीएनए आरएनए कुछ भी इंजेक्ट नहीं होता है, सिर्फ स्पाइक प्रोटीन डायरेक्टली होता है। उसका अच्छा खासा एफिकेसी दिख रहा है, 96%। यूके वेरिएंट पे भी अच्छा एफिकेसी दिख रहा है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट पे अगेन ओनली 55% एफिकेसी दिख रहा है। ये भी इजी है स्टोर करने के लिए। ये साइनोफार्म है, दिस इज अनदर वन, ये हमारा भारत बायोटेक जैसा है और सिमिलर उनका एफिकेसी है। स्पुतनिक गामालय जो शॉर्टली आफ्टर अवेलेबल होगा इंडिया में भी, तो ये भी एडिनोवायरस वैक्सीन है, इसमें भी वो डीएनए एनकोड किया गया है। सो इट सिमिलर टू कोविशील्ड एक्चुअली, और इसमें फर्स्ट डोज रहता है, सेकेंड डोज रहता है, एंड सिमिलरली स्पाइक प्रोटीन प्रोड्यूस, तो हमारे कोविशील्ड जैसा ही है।
91% उसका ओरिजिनल स्ट्रेन में एफिकेसी है। जो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है 351, उसका एफिकेसी अभी तक स्टडी नहीं हुआ है। तो ये है मेरा वैक्सीनेशन का फोटो, और ये मोदी जी के वैक्सीनेशन के फोटो। तो he has taken Covaxin, तो most of the healthcare workers we have taken the Covishield। तो ये है हम मेन चीज जो मैं बताना चाहती हूँ इज वी आर गेटिंग मेनी पेशेंट्स इन स्पाइट ऑफ वैक्सीनेशन हु आर गेटिंग इलनेस। तो ये है कि हमको सावधानी कम नहीं करना है। वी हैव टू कीप द मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। जैसे हमने लॉकडाउन में लास्ट ईयर बिहेव किया, फिजिकली भले गवर्नमेंट ने लॉकडाउन एनफोर्स नहीं किया, बट वी हैव टू एक्ट लाइक दैट बिकॉज द सेकेंड वेव इज गोइंग वेरी वेरी फास्ट। It's going probably very fast because of two reasons. One is there is a complete unlocking, and secondly there is a the strain जो है, जो UK variant है 117, वो है very much faster spreading। उसके स्टडीज भी हुए हैं, 1.5 times faster वो स्प्रेड होती है। फास्टर स्प्रेड होने की वजह से उसका नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बहुत ज्यादा होती है। नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड जब भी ज्यादा होगी तभी, और स्प्रेड भी फास्ट फास्ट होते रहेगा, तो ऑटोमेटिकली वो नंबर में भले 1 in 1000 ही उसका मोर्टेलिटी हो, लेकिन वो 1 in 1000 का नंबर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगे। इसके लिए एक्चुअली जो फास्टर स्प्रेडिंग वेरिएंट है वो मोर टॉक्सिक वेरिएंट से ज्यादा डेंजरस है, और ये इसके लिए हमको हमारे सावधानी को जो डबल है वो करना है, ज्यादा केयरफुल रहना है। ऑल्दो वैक्सीन तो जरूर लेना है, लेकिन संभल के भी रहना है, और थोड़े टाइम के लिए, जब तक ये बीमारी कम ना हो जाए। कैसे वैक्सीनेशन करते हैं, मोस्ट ऑफ यू नो। आपको आप कोई भी कोविन प्लेटफॉर्म में जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, तो आपको SMS आएगा। आपको जिधर जाके वैक्सीन लेना चाहते हैं वो आप खुद ही चूज कर सकते हैं, और एक बार रजिस्ट्रेशन का SMS आएगा, आप जाके वैक्सीनेशन लेने के बाद और एक SMS आएगा कि आपने लिया है, एंड आपको सेकेंड डोज के लिए भी आपको SMS आ जाएगी। आजकल आई थिंक सेकेंड डोज का SMS नहीं आता है, बट इट इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। Anybody over 45 can now get the vaccine। वैक्सीनेशन के लिए अभी कोमोर्बिडिटी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जो पहले आपको जरूरत था। तो ये सब है। थैंक यू डॉक्टर जया। मुझे लगता है कि जो भी हमारे लिसनर्स हैं उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर आप ऑलरेडी दे चुकी हैं। आप अपना स्क्रीन शेयर आप हटा सकती हैं, और फिर भी कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो दर्शकों ने पूछे हैं। तो जैसा कि आपने बता दिया है कि अगर वैक्सीनेशन लेना है तो उसका सही तरीका क्या है, तो आपने बताया कि थ्रू कोविन ऐप आप जा सकते हैं। अगर हम बिना रजिस्टर करे वो डायरेक्ट वॉक इन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या रजिस्ट्रेशन करना इतना जरूरी है? आजकल तो बहुत सारे सेंटर्स जो है वो विदाउट रजिस्ट्रेशन भी ले रहे हैं, लेकिन हम यहाँ भी देख रहे हैं अपोलो में कि लास्ट जब से 1 अप्रैल जब से स्टार्ट हुआ और अबाउ 45 इयर्स के लोग आने लगे हैं, तो देर आर वेरी मेनी पीपल हु आर देयर। तो बहुत सारे नंबर्स हैं, तो देन ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी विल बी गिवन टू दोस हु हैव ऑलरेडी गॉट रजिस्टर्ड। सो इट इज बेटर सेफर टू गेट रजिस्टर्ड एंड देन टू गो फॉर द वैक्सीनेशन, बिकॉज हमको क्राउड अवॉइड करना है वैक्सीनेशन सेंटर्स में। बट देर आर सेंटर्स जिधर उतने गर्दी नहीं है, एंड दे टेक पीपल हु आर कमिंग डायरेक्टली, वो लोग वहीं पे खुद ही रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। इज नॉट 100% मैंडेटरी। ओके और रजिस्ट्रेशन अगर मैंने रजिस्टर कर दिया और जब मैं वैक्सीन लेने जा रही हूँ, तो किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत वहां पर पड़ती है? सिर्फ आधार कार्ड पूछते हैं। ओके और नहीं लगता है, जेरोक्स या फिर आपके फोन में फोटो है तो भी चलता है। ओके और क्या हमको चॉइस दी जाती है, अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे कोवैक्सीन लेना है या कोविशील्ड लेना है, तो क्या हर सेंटर पे दोनों वैक्सीन अवेलेबल हैं? नहीं, हर सेंटर में दोनों वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में कोविशील्ड ही अवेलेबल है। आई थिंक JJ हॉस्पिटल में कोवैक्सीन मिल रहा है, और कुछ कुछ सेंटर्स में मुझे पता नहीं है, लेकिन मोस्टली सब जगह में कोविशील्ड, अपोलो में तो कोविशील्ड है। ओके सो ये जो वैक्सीनेशन है वो मैंडेटरी है या मेरी चॉइस है? मान लो मैं 53 इयर्स हूँ और मुझे वैक्सीन नहीं लेना है, तो क्या ये मैंडेटरी है कि मुझे लेना जरूरी है या मेरी चॉइस है? मैंडेटरी नहीं है, बाय चॉइस ही है। बट किस एज ग्रुप के लिए मैंडेटरी है जो आप सजेस्ट करेंगी कि इनको तो लेना ही चाहिए?
सभी को भी लेना ही चाहिए। आई फील ओनली द वेरी वेरी एल्डरली जो ग्रुप है, हाँ। मे बी 85 अबव, 80 अबव, जिनको बहुत सारे कुमज या फिर ज्यादा वीक है, मे बी दे कैन वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि बहुत क्राउड में उनको जाना भी सेफ नहीं है। तो बहुत ही क्राउड में गए वैक्सीनेशन सेंटर में और वहां से इन्फेक्शन हो गया, वो भी थोड़ा डर रहता है। बट इट इज नॉट, वी विल नॉट से इट इज मैंडेटरी, बट इट इज बेटर दैट एवरीबडी शुड टेक द वैक्सीन। ओके, और बहुत सारे पेशेंट्स ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट्स पैरालाइज्ड है या टोटली बेड रिडन है तो उसको कैसे वैक्सीनेट करेंगे? क्या आने वाले समय में ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई नर्स या घर जाकर दे, या कैसे करेंगे? जैसे हम किसी को मूव नहीं कर सकते, जो पेशेंट्स बेड रिडन है या जो पैरालाइज्ड हैं, उनको किस तरह से वैक्सीनेट किया जाएगा? बहुत सारे लोगों का ये इश्यू है, तो आई एम श्योर कि जैसे थोड़े दिनों में वी विल स्टार्ट, द गवर्नमेंट विल स्टार्ट मेकिंग अ प्लान फॉर सेंडिंग समबडी, और एटलीस्ट गिव परमिशन कि वो वैक्सीन उनको दिया जाए और फिर कोई जाके घर में दे दिया जाए। ओके, तो हमारे एक श्रोता दर्शक ने पूछा है कि वो इम्यूनो सप्रेसेंट्स मेडिसिन ले रहे हैं और एंटीकोगुलेंट मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं? हाँ, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन, इनफैक्ट आप अगर वो पेपर देखेंगे जो कोमॉर्बिडिटी का सर्टिफिकेट था जो हम भर रहे थे थोड़े दिनों पहले, तो उसमें देयर इज एन ऑप्शन कि अगर पेशेंट इज सिवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज और ऑन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सप्रेसिव मेडिकेशन, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है जिसके लिए कोमॉर्बिडिटी के लिए वो इनफैक्ट दे वर अमंग द प्रायोरिटी फॉर गेटिंग द वैक्सीन। अबव 45 इयर्स तो हम पहले प्रायोरिटी वालों को ही दे रहे थे जो कोमॉर्बिडिटी है उनको। सो इट वाज गवर्नमेंट कोमॉर्बिडिटी प्रायोरिटी एक्चुअली की, तो उनको मिल सकता है जरूर। ओनली थिंग इज उन्होंने देखना है कि उनका इम्यूनिटी लेवल कितना है, तो यूजुअली उनके जो डॉक्टर है जो उनको मेडिकेशन दे रहे हैं उनसे एक क्लियरेंस, मतलब कैन टेक द वैक्सीन, ऐसा नॉट नेसेसरी सर्टिफिकेट, तो उनसे कंफर्म करके उनको लेना चाहिए। ओके, और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे पेशेंट ये पूछ रहे हैं कि मैं 70 इयर्स की हूँ, मैं अस्थमेटिक हूँ, मैं फोराकॉट इनहेलर ले रही हूँ, मैं ब्रोंकोडायलेटर्स ले रही हूँ, तो क्या मैं वैक्सीन ले सकती हूँ? हाँ, जरूर ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी हमारा पेशेंट्स इनहेलर्स पे है, इवन उनको माइल्ड डोज स्टीरॉयड चल रहा है बिकॉज ऑफ सीवियर अस्थमा या सीओपीडी, या नेबुलाइजेशंस ले रहे हैं, या एलर्जिक है टू डस्ट, टू पोलन, मतलब जो एलर्जिक राइनाइटिस है, एलर्जिक डर्मेटाइटिस है, वो सब ले सकते हैं वैक्सीन। और देखिए, मैक्सिमम पेशेंट्स जो हैं जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, फिर भी उनके लिए लेना अनिवार्य है, फिर भी उनका ये क्वेश्चन है कि मुझे डायबिटीज है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मेरा कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, तो क्या मुझे वैक्सीन लेना चाहिए? वैक्सीन का मुझे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? तो मेन हम कोविड में ये देख रहे हैं कि जो थोड़ा ओबीस है, जो डायबिटिक है, जिसको ब्लड प्रेशर है, उनको ज्यादा सीवियर बीमारी होती है। स्पेशली हम देख रहे हैं कि ये जो एज ग्रुप है बिटवीन 45 टू 65 के एज ग्रुप में, जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, जिनको ओबेसिटी है, लिपिड को ज्यादा है, इनको बहुत सीवियर बीमारियां होती है कोविड का। तो ये सब ग्रुप एकदम हाई रिस्क है और उनको जरूर जल्दी से वैक्सीन लेना चाहिए, और प्लस सोशल प्रिकॉशंस भी पालन कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, सो आज जैसे मुझे वैक्सीन लेने जाना है और मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो 180/100 है, तो मैं आज वैक्सीन ले सकता हूँ या मुझे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने तक वेट करना चाहिए? तो बेटर है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने तक वेट करना है। वहां पे कोवैक्सीन सेंटर में कोई बीपी तो चेक नहीं करता है, तो वो क्योंकि पॉसिबल होगी वैक्सीन लेने से वो एंजाइटी की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर और बढ़े, या शायद आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा ही इसके लिए है कि आप वैक्सीन लेने जा रहे हैं, तो वो आपको देखना है। ओके ओके, सो हमको वैक्सीन लेने से पहले क्या सीआरपी चेक करना चाहिए? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं। और कोई क्लॉटिंग फैक्टर हमको चेक करना चाहिए, क्योंकि बहुत तरह तरह की र्यूमर्स हैं कि वैक्सीन लेने के बाद क्लॉटिंग हो सकती है, तो क्या हमको वैक्सीन लेने जाने से पहले कोई ब्लड टेस्ट करना चाहिए जिससे मैं ये पता कर सकूं कि वैक्सीन के बाद मुझे कोई क्लॉटिंग तो नहीं हो जाएगी? पहले तो कुछ नहीं है प्रेडिक्टर, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी ऐसा है तो ऐसा होगा। ये जो क्लॉटिंग हो रहे हैं बहुत स्मॉल प्रिपोर्शन पेशेंट में हो रहा है, और उनको ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं कि उनको क्लॉटिंग हो रहा है, उनका जो डी डाइमर है वो बढ़ा हुआ रहता है,
और उनका जो प्लेटलेट्स है वो लो हो जाते हैं। ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन रहता है। तो ऐसे पेशेंट में इट इज सिमिलर टू वो जो एक सिंड्रोम रहता है जिसको हिपेरिन मिलता है, हिट करके एक रहता है, मीन्स वो एक इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टाइप रहता है, एक टाइप ऑफ इम्यूनिटी रहता है जिसमें प्लेटलेट कम हो जाती है। तो इसका स्पेशल टेस्ट भी रहता है, एक हिट प्रोफाइल करके एक टेस्ट रहता है, एलाइजा हिट करके, तो उसमें वो पता भी चलता है कि ये है क्या। तो अगर कोई ब्लीडिंग का सिम्टम्स आए या फिर ऐसे कोई हेडेक का सिम्टम्स आए तो ही उसके लिए इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तो फिर उसका सेकेंड डोज फिर नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऐसे केसेस इंडिया में तो नहीं दिखे हैं, अब्रॉड में डॉक्यूमेंट हुए हैं, और तो उनके उसका स्टडीज हो रहा है कि उसके लिए कुछ प्रिवेंशन है क्या, बट एज ऑफ नाउ देयर इज नथिंग। द नंबर ऑफ दिस टाइप ऑफ साइड इफेक्ट इज वेरी 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 कंपेयर टू द नंबर जितने बहुत वैक्सीनेशंस हो रहे हैं। सो देयर इज नो रिकमेंडेशन टू स्टॉप और टू डू एनी ब्लड टेस्ट, अभी तक तो कुछ नहीं है। ओके, किसी ने पूछा है कि एज ए फीमेल अगर मैं वैक्सीन लेती हूँ तो मुझे क्या कोई इनफर्टिलिटी होगी या मुझे कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, उसका कोई ऐसे रिलेशन नहीं है। ओके, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या वैक्सीन लेने के बाद मैं अल्कोहल कंज्यूम कर सकता हूँ? उसकी भी स्टडीज नहीं है। 2-3 दिन तो फीवर रहता है, तो यू बेटर नॉट टू डू एनीथिंग। वंस यू आर फीलिंग फिट एंड फाइन, आपका जो रेगुलर लाइफस्टाइल है आप कर सकते हैं। और सबसे जो कॉमन क्वेश्चन है कि मुझे सल्फा ड्रग से एलर्जी है, मुझे पेनिसिलिन से एलर्जी है, मुझे मशरूम से एलर्जी है, मुझे डस्ट से एलर्जी है, तो क्या मैं वैक्सीन ले सकती हूँ? ये सब जो कॉमन एलर्जन है ये तो वैक्सीन में है नहीं, तो उसका कोई संबंध नहीं है वैक्सीन के लिए। नॉर्मली भी हम ये देखते हैं कि इवन हम जो भी फ्लू वैक्सीन तो हमने अभी रेगुलरली दिया है इतने सालों को, इतने सारे लोगों को, तो उसमें एक है कि एग प्रोडक्ट रहता है, बट इवन देन जिसको एग एलर्जी है वो भी, उनको भी हम फ्लू वैक्सीन देते हैं, इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, और जस्ट हॉस्पिटल सेटअप में देते हैं ताकि कुछ हुआ तो, बट प्रैक्टिकली इट्स सेफ। तो एनी सल्फा एलर्जी, एमोक्सिसिलिन या ड्रग एलर्जी या डस्ट एलर्जी, ये सब कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है वैक्सीन के लिए। पर एक बात बताइए ना, अगर कोई भी पर्सन किसी वैक्सीनेशन सेंटर में जाता है और वो ये कहता है कि मुझे सल्फा से एलर्जी है या पेनिसिलिन से एलर्जी है, तो वहां पर वैक्सीन दिया नहीं जाता है, उन्हें वापस भेज दिया जाता है, ऐसा क्यों? बिकॉज दे आर नॉट रियली वेरी अवेयर कि ये कौन सा एलर्जन एक्चुअली ये है, एंड ऑन पेपर इट इज देयर कि यू नो इफ एनी एलर्जीज आर देयर यू इन्फॉर्म, तो इसकी वजह से वो हो रहा है। आई फील आफ्टर 2-3 months वंस देयर इज मोर एक्सपीरियंस ओवर हियर, पीपल विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन गिविंग, बट हम लोग यहाँ पे तो दे रहे हैं। ओके, तो जैसा कि आपने बताया डॉक्टर जया कि जो बच्चे हैं या 18 साल से छोटे लोग हैं या जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं या जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको हम वैक्सीन नहीं दे सकते क्योंकि अभी तक स्टडीज नहीं है, तो हम उनको किस तरह से बचा सकते हैं? उनको सोशल डिस्टेंसिंग ही करना है। ओके, ओके, और एक बात बताइए, अगर मैंने वैक्सीन ले लिया तो क्या अब मुझे अपने नेटिव प्लेस जाना है या मुझे सिंगापुर जाना है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? आप जा सकते हैं, सेकेंड डोज के टाइम तक आपको वापस आना है, जाने में और आने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सेम सोशल डिस्टेंसिंग और सिक्योरिटी मेजर फॉलो करना है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि देर आर अदर वेरिएंट्स आल्सो विच आर नॉट सो इफेक्टिव, वैक्सीन में नॉट बी दैट इफेक्टिव। नए कौन से वेरिएंट्स है हमको पता नहीं, एज ऑफ नाउ बहुत सारा वायरस फैला हुआ है, तो बहुत संभल के ट्रैवल करना चाहिए। ट्रैवलिंग तो अभी मना नहीं है, जाने से पहले they will ask you to probably do a COVID testing. Most of the international flights are asking. कोविड स्वैब पॉजिटिव नहीं आता है वैक्सीन लेने से, तो आप स्वैब ले सकते हैं, नेगेटिव है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, हमारी एक लिसनर ने पूछा है कि वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, तो क्या वो कोविड वैक्सीन ले सकती है और कोविड वैक्सीन लेने के कितने दिनों के बाद उसको कंसीव करना चाहिए? तो प्रेगनेंसी प्लानिंग है तो ले सकते हैं, एज ऑफ नाउ तो अप टू 45 इयर्स है, तो मे बी इट मे नॉट बी अवेलेबल, बट व्हेन इट इज अवेलेबल दे कैन डेफिनेटली टेक, एंड 1 month का गैप देना चाहिए बिटवीन प्लानिंग फॉर द प्रेगनेंसी। ओके, बहुत से लोगों का कहना है कि जब कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड हो रहा है और हमने कोविड वैक्सीन ले लिया, फिर भी मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, तो फिर कोविड वैक्सीन की जरूरत क्या है?
क्यों हमको लेना है? अगर हमको सब कुछ जो लॉकडाउन में हम कर रहे थे अभी भी करना है तो बदला क्या है? क्यों लेना है वैक्सीन? भाई मुझे नहीं लेना वैक्सीन। क्योंकि जो यूके में स्टडीज हुए हैं कोविशील्ड के, जो हमने देखा है, उसमें अगर हम देखेंगे तो कोविड वैक्सीन ने नहीं लिया तो जो नंबर ऑफ इन्फेक्शंस होते हैं उसका 20% ही इन्फेक्शंस होते हैं अगर वैक्सीनेशन लिया तो, मतलब 5 गुना कम इन्फेक्शन होने का चांसेस हो जाते हैं। और जो सीरियस इलनेस है, मतलब हॉस्पिटलाइज होना, इतना सारा लंग इन्वॉल्वमेंट होना कि वेंटिलेटर लगे, डेथ का चांसेस, ये ऑलमोस्ट 98% कम हो जाते हैं, 2% तक आ जाते हैं। तो कुछ तो इम्यूनिटी बेटर है कुछ भी इम्यूनिटी ना होने से। सो उस हिसाब ओके से कोविड वैक्सीनेशन लेना तो जरूर अच्छा है। इट्स लाइक सिमिलर कि वायरस इन्फेक्शन होने के बाद कैसा इम्यूनिटी रहता है, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के लिए हमने देखा है पीपल आर रिलेटिवली वेरी इम्यून। तो वो उस तरह का इम्यूनिटी, बेटर इम्यूनिटी प्रोड्यूस होता है वैक्सीनेशन से। ओके। सो अभी आप ये बताइए कि जैसे फ्लू वगैरह में होता है कि एवरी ईयर नए वायरसेस आते हैं, तो जो एवरी ईयर फ्लू वैक्सीन लेना होता है क्योंकि वो वंस इन अ ईयर के लिए होता है, तो क्या इसी तरह कोविशील्ड और कोवैक्सीन को हमको बार बार रिपीट करते रहना है? क्योंकि मैंने ये सुना है कि इनकी जो एफिकेसी है या जो इफेक्टिवनेस है वो 6 to 8 months ही है। तो क्या हमको हर साल बूस्टर डोज लेना पड़ेगा या अभी कैसे होगा? अभी तो किसी को ये मालूम नहीं है कि 6 to 8 मंथ्स है क्या, 1 साल है या 2 साल है, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन चालू होके 6 मंथ्स हुए भी नहीं है किधर भी। तो वो जब भी होगा तभी एंड ऑफ द ईयर आई थिंक विल गेट अ बेटर आइडिया। मोस्ट पीपल फील कि ये जो टी हेल्पर सेल्स करके भी रहता है, सिर्फ एंटीबॉडी नहीं रहता है इम्यूनिटी के लिए, और ये जो टी हेल्पर सेल्स का इम्यूनिटी ऑलमोस्ट 2 साल तक चलती है। लेकिन जैसे आपने कहा ये जो नए वेरिएंट्स आएंगे उसके लिए भी प्रोटेक्शन लगेगा, तो अगर इट मे बी पॉसिबल दैट यू मे नीड अ बूस्टर डोज एवरी ईयर, वी कैन नॉट से। ओके। और एक बात बताइए कि जैसे मैंने 2 डोजेस ले ली कोविशील्ड की बाकी, तो मेरे अंदर कितना एंटीबॉडीज डेवलप होंगी? कभी कभी लोगों ने पूछा है कि 2 मैंने वैक्सीन लिए हैं और मेरा एंटीबॉडी लेवल 0 है, इसका क्या मतलब है? तो 2 टाइप के इम्यूनिटी होते हैं बॉडी में, एक जो है वो एंटीबॉडी लेवल का होता है, एक जैसे मैंने बोला टी सेल्स के ऊपर होता है। तो उसमें TH1 और TH2 ऐसे दो दूसरे भी सेल्स रहते हैं बॉडी के जो एंटीबॉडी टेस्ट में नहीं पकड़े जाते हैं। तो उस टाइप का इम्यूनिटी भी रहता है। बहुत सारे पेशेंट जिनको एक्चुअली कोविड भी हुआ है उनको भी एंटीबॉडी लेवल रहता नहीं है, लेकिन उनको इम्यूनिटी रहता है। तो ये बॉडी का 2-3 मैकेनिज्म रहता है इम्यूनिटी के लिए, तो वो मैकेनिज्म उसमें काम आते हैं। तो जो रिसर्च स्टडीज है उसमें उन्होंने देखा है कि वो जो टी हेल्पर सेल्स वो भी बढ़ते हैं। उसका फिजिकल टेस्ट नहीं है कमर्शियली अवेलेबल। ओके। सो व्हाट इज हर्ड इम्यूनिटी? हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? हर्ड इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी कब हर्ड तक आएगा? इम्यूनिटी हर्ड इम्यूनिटी ऐसा है कि जब भी 60% पॉपुलेशन को में एंटीबॉडीज है तो उसको हर्ड इम्यूनिटी करते हैं। क्योंकि ऐसा है कि जो बाहर मास्क किधर है? हेलो। हाँ। जो बाहर घूम रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर प्रोटेक्टेड, तो उनको हुआ भी उनको नहीं होता है। सो दे बिकम लाइक अ वॉल अगेंस्ट द पीपल हु आर नॉट हैविंग द इम्यूनिटी। तो इसको हर्ड ओके। इम्यूनिटी कहते हैं। तो मतलब एक बड़ा ओके। हर्ड रहेगा, उसमें बीच में थोड़े बच्चे रहेंगे जिसको इम्यूनिटी नहीं है, लेकिन दे आर प्रोटेक्टेड बाय द बिग हर्ड। जैसे आप एनिमल्स में देखते हैं उनका बड़ा झुंड जाता है, तो बीच में वो लोग रखते हैं जो बच्चे हैं जिसको वीक है, वो जो बाहर रहते हैं वो स्ट्रांग रहते हैं, तो वो प्रोटेक्शन हो जाता है बाकी लोगों के लिए। ओके। सो जैसा कि गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन का इनिशिएशन लिया है, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ऐसा कोई इनिशिएशन लेगी कि जिन लोगों के 2-2 वैक्सीन हो चुके हैं स्टडी पर्पस के लिए, क्या गवर्नमेंट सभी का एंटीबॉडी टेस्ट फ्री करवाएगी या कैसे होगा? थर्ड फेज स्टडी क्या होती है कि मैंने जो 2 वैक्सीन लिए मेरी इम्यूनिटी बढ़ी कि नहीं, मेरे अंदर एंटीबॉडीज आई कि नहीं, ये मुझे पर्सनल अपना करते रहना है या गवर्नमेंट कोई इनिशिएशन लेगी? आपको क्या लगता है, क्योंकि आप इसी फील्ड में हैं? मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट ऐसा कुछ इनिशिएशन लेगा, क्योंकि दैट एंटीबॉडी लेवल इज नॉट 100% प्रूफ की और इम्यून और यूर नॉट इम्यून। तो उससे इट्स नॉट एडवाइजेबल फॉर एवरीबॉडी टू गो ऑन डूइंग देयर एंटीबॉडी टेस्ट आल्सो आफ्टर टेकिंग द वैक्सीन, बिकॉज जैसे मैंने बोला देयर आर अदर टाइप ऑफ इम्यूनिटी आल्सो। तो वो करने से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो आई डोंट थिंक वो गवर्नमेंट से तरफ से होगा। सो ये कैसे पता चलेगा कि जो वैक्सीनेशन हुआ है वो सक्सेसफुल है या नहीं है? इट्स जस्ट अ ट्रायल,
क्योंकि हर चीज अंडर स्टडी है। हाँ, तो स्टडीज हुए हैं ना, जो वैक्सीनेशन लिए हैं लास्ट अप्रैल से, 2020 अप्रैल से ट्रायल्स चालू है। तो 6 मंथ के रिजल्ट्स आए हैं ऑक्सफोर्ड के, अभी कोवैक्सीन के फेज 3 स्टडीज आए हैं। तो उसमें दे हैव नॉट ओनली सीन द एंटीबॉडी लेवल, they are also seeing कि how much of these people are actually getting COVID infection and how much are getting serious COVID infection. उस तरह से उसका ट्रायल होता है। ओके, सो सेकेंड वेव क्या होता है डॉक्टर जया? सेकेंड वेव किसको कहते हैं, और आपको क्या लगता है कि थर्ड वेव और फोर्थ वेव भी आएगा? अभी जो अमेरिका में है फोर्थ वेव चल रहा है। इंडिया में जो है फर्स्ट वेव ही इतना लंबा चला कि बाद में वो जो सबसाइड हो गया वो बहुत कम महीनों के लिए, नवंबर दिसंबर जैन तक हमारा सबसाइड हो गया था, फेब में वापस बढ़ने लगे केसेस। तो ये हमारा सेकेंड वेव है। ये सेकेंड वेव आके फिर वो सबसाइड होगा, फिर उसके बाद थर्ड वेव होने की चांसेस है। अगर वैक्सीनेशन तब तक काम किए तो होपफुली थर्ड वेव नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है ये जो सेकेंड वेव आया है ये हम सबकी लापरवाही का नतीजा है या क्या है? दोनों है, लापरवाही है और एक तो नया स्ट्रेन्स के वजह से है, जो वायरस ने म्यूटेट कर गया है उसकी वजह से, दोनों है उसमें। ओके, लापरवाही भी नहीं बोल सकते हैं, लॉकडाउन कितना दिन तक रखेंगे ना, तो जी। मतलब जो लोग इंटरमिंगल करते हैं तो ऑटोमेटिकली वायरस स्प्रेड हो जाती है। ओके, सो आई थिंक जो मैक्सिमम क्वेरीज हैं लोगों की, सबसे ज्यादा क्वेरीज होती हैं कि दुनिया भर की एलर्जीज है, क्या मैं वैक्सीन ले सकती हूँ, क्या वैक्सीन सेफ है, कोविशील्ड कोवैक्सीन, कितना गैप होना चाहिए, एक बार कोविड होने के कितने दिनों के बाद मैं वैक्सीन ले सकती हूँ, या मुझे आज मैंने फर्स्ट डोज लिया 10 दिन के बाद मुझे कोविड हो गया तो सेकेंड डोज के लिए मुझे कितने दिन रुकना चाहिए। मुझे लगता है कि आपने जितनी भी क्वेरीज हैं सबका बहुत ही खूबसूरती से आंसर किया है। सो मुझे लगता है कि अब हमें इसको हम अल्प विराम दे सकते हैं और हम फिर से आपको आगे भी इनवाइट करना चाहेंगे। सो आई थिंक थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जया। अंत में मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आज छुट्टी के दिन संडे को भी आप सभी ने अपना कीमती समय हमें दिया। बोलिए। हेलो, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? यस, पूछिए। अच्छा, माय वाइफ हैज टेकन वन कोविशील्ड फर्स्ट डोज और सेकंड डोज लेने के अपने सप्ताह भर पहले उसको हर्पीस जोस्टर हो गया था। तो हर्पीस जोस्टर अभी उसका अपने जो वेल्सेवीर अपने पूरा कोर्स कर दिया है। नाउ इट इज सबसाइडेड वर्चुअली, लेकिन अभी अपने करीब 6 वीक्स हो गया। अब कितने टाइम के बाद में सेकंड डोज देना चाहिए? जैसे बोला ना, कोई भी सीरियस इलनेस हुआ तो 1 महीना वेट करना बेटर है सेकंड डोज के लिए। But this herpes zoster is a serious illness? Yes, it's a viral. But it's of course virus. But this is the second time it has happened. You know, she has already suffered in a long back for the first zoster. This time she has the second time. And she is a immunocompromised, or the immunocompromised in the sense, you know, she has got a RA, hypothyroid, she has a COPD and all these things, you know, the dry eye syndrome. थोड़ा वेट करना ही बेटर रहेगा डॉक्टर। अच्छा, कब तक वेट करें मैडम? उसका जो सेकंड वाज ड्यू ऑन द 1st of this April. Yeah, but you don't have to worry so much. WHO का recommendation is actually that you should wait for up to 12 weeks and then up to 12 weeks. So can I go in the first week of May? Can I go for the second dose? Yeah, 1 month wait करके जा सकते हैं। 1 month will be over, madam. This, you know, then it will be 8 weeks, you know, from between this first dose and the second dose. No problem. Hello? I can go for that thing, no? Yeah. Nice. Hello. Thank you very much. Hello. हाँ, बोलिए। हाँ, yeah, I'm a doctor. I had just raised a query. If my relative has a multiple sclerosis and the patient is not on any DMDs or immunosuppressants, we are only worried about side effect, neuroinflammatory side effects of Covishield per se, transverse myelitis. So, so many Indians have undergone now this Covishield vaccine. So, is there any data
No, which has not been on raised transverse myelitis. about transverse myelitis or neuroinflammatory Not been seen adverse effects? internationally. No, it's not been seen internationally. वो जो starting में एक आध case आए थे and it was see because transverse myelitis occurs in the population as well. So large number of population when they are vaccinated, जो automatic population में आने वाला है वो बीमारियां तो आएंगी. You cannot directly connect it to the vaccination. Yeah. So, it has not been directly connected to transverse myelitis. Only very few incidences उनका cerebral venous thrombosis से जो है थोड़े से records है, but it's not significant enough to stop the vaccination, right? So it's going on. So not for transverse myelitis. वो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं. Yeah, maybe we should not consider that as a No. okay, got it. Thank you. Madam, Doctor- I had a itching after first dose of vaccine Covishield. Can I take second dose or will it increase the itching or should I take some anti-allergic? You got itching after first dose? After first dose. Severe itching? It's a mild to moderate itching. Generally, I don't get this kind of thing, but then I got itching. Some small rashes also on the extremities. Small rashes, very small, for 1 or 2 days. Okay. So you can take, but you should take it under cover of a antihistaminic. Antihistaminic. So I should take one Sedzin before going to this. And okay. Thank you, ma'am. डॉक्टर जया, अगर फर्स्ट डोज कोविशील्ड लिया है और डॉग बाइट हो जाता है तो क्या एंटी रेबीज वैक्सीन लिए जा सकते हैं और सेकेंड डोज डिफर करना पड़ेगा? एंटी रेबीज वैक्सीन तो कंपलसरी है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, जो भी हो. There are obviously no studies for all this, but anti rabies नहीं पड़ेगा. मैडम मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? पूछे. मुझे एम्पिसिलिन की एलर्जी है. हाँ, सो और अभी मैं यानी अभी मेरा क्वारंटाइन खत्म हुआ, मैं कोविड पॉजिटिव आई थी. हाँ, तो अभी कितने दिन के बाद यानी एम्पिसिलिन की एलर्जी है तो मैं वैक्सीन ले सकती हूँ? यस. वो एम्पिसिलिन का कोई कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है वो वैक्सीन में, तो आप ले सकते हैं. हेलो डॉक्टर जया, आपको क्योंकि अभी और अभी कितने दिन के बाद मुझे वैक्सीन लेना है? एक्टिव कोविड होने के बाद 1 महीने के बाद आप ले सकते हैं. अच्छा. Hello, Dr. Jaya. Thank you, ma'am. Yeah, this is Shilpi Bhokle. Can I ask one question? यस. Actually, डॉक्टर मेरे फादर इन लॉ को अस्थमा है और डायबिटिक है और उनका एज 65 है, बट वो वैक्सीन लेने को बहुत डर रहे हैं, तो उनको ले सकते हैं. 65 with asthma and diabetes is one of the main indications to actually take the vaccine. 100% लेना चाहिए. लेने के लिए ले लेना चाहिए ना? 100%. यस. Okay, डॉक्टर, thank you. Hello, can I ask a question? यस. can I ask? Hello, yes. hello. बोलिए. So मेरी मॉम को अगर- डायबिटीज है and अभी she was like tested COVID positive like recently last August में. So is it like okay to take her like the vaccine, the first बताया dose? अभी जैसा कि डॉक्टर जया ने बताया कि डायबिटीज को 100% देना है और कोविड होने के 1 मंथ के बाद आप सेफली वैक्सीन दे सकती हैं. दे सकते हैं. Okay, अच्छा. So there is nothing harm or नहीं, anything like- nothing. All right. Thank you. गैप 1.5 महीने का होना चाहिए कोविशील्ड का. Yes, 6 to 8 weeks. Any other questions, Dr. Arun? I think Dr. Jaya, there is no more questions. Thank you so much. So थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जया. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना संडे का समय हम सबको दिया. डॉक्टर जया, आपने बहुत ही सरल सिंपल शब्दों में सभी को बहुत अच्छे से सब कुछ समझा दिया. आई थिंक इस लेक्चर से सबको बहुत फायदा हुआ होगा और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ डॉक्टर अरुण, डॉक्टर मीनाक्षी का और नवी मुंबई डॉक्टर्स फाउंडेशन का कि उनकी टीम जो समय समय पर विभिन्न विषयों में समाज को तरह तरह की बीमारियों के बारे में टाइम टू टाइम अवगत कराते रहते हैं. उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें, कोविड के नियमों का पूर्णतः पालन करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी लोग कोविड वैक्सीन लें ताकि हम जल्दी से जल्दी कोरोना को भगा सकें
और कोई भी बीमारियां कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट है तो नवी मुंबई डॉक्टर्स फाउंडेशन के सारे डॉक्टर्स, इवन डॉक्टर जया भी आपके क्वेश्चंस के लिए उनका आंसर देने के लिए रेडी हैं। आप कभी भी कोई भी क्वेरीज हैं वो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा फेसबुक अकाउंट है, उस पे जाकर भी आप नवी मुंबई डॉक्टर्स फाउंडेशन में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें डाल सकते हैं। हमें आपकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर जया, थैंक यू डॉक्टर अरुण, थैंक यू डॉक्टर मीनाक्षी, थैंक यू नवी मुंबई डॉक्टर्स फाउंडेशन। थैंक यू वेरी मच। Thank you, ma'am. Thank you, Sangeeta. Thank you so much, Dr. Sangeeta.